Hello students, welcome to Abhilaw, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarishar Patnigire, Director of Bengal School of Law, retired Additional Commissioner, and we were learning about Code of Civil Procedure 1908. I hope so you remember till the last lecture we have completed section 18. So today we are going to start section 19, 20 and 21. Section 19, place of suing. We should know this is a very important section where basically you can sue a person. So let's start section 19. Suit for compensation for wrong to persons are movable. Means where to file the suit for compensation which has been done wrong for a person or movable. Whereas a suit is for compensation for wrong done to the person or to a movable property if the wrong was done within the local limit of the jurisdiction of one court and the defendant resides or carries on a business or personally works for gain within the local limit of jurisdiction of another court, the suit may be instituted at the option of plaintiff in either of the said court. Let us understand section 19 properly. What are the ingredients? Okay, where the suit is for compensation of wrong done to a person or to a movable property. So if the wrong done within the local limit of jurisdiction of one court, where the wrong has been done is in the local jurisdiction of one court, but the person who has done the wrong is staying or residing or carries his business in some other local limits of another jurisdiction of the court. Then where the plaintiff can file the suit depends upon where the plaintiff decide. The options are with the plaintiff. Institution, illustration, A residing in Delhi, bids B in Calcutta. B may sue A either in Calcutta or in Delhi. Very simple example. This example helps you to understand section 19. Let's understand the meaning and explanation. Okay. Section 19 provides special rules regarding jurisdiction in case where involving torts, that is civil wrong, that is wrong done to a person or a movable property. So section 19 is talking about civil wrongs, okay, done to a person or movable property. It gives the plaintiff an option to choose between the two courts for filing the suit when the wrong, the cause of action occurred in one place and the defendant resides in other place or carries on the business in another place. Essentials of section 19. Let us understand the nature of the suit which section 19 talks about. The suit must be for compensation for wrong that is tort done to a person. Example, assault, defamation, or movable property. Example, theft, damage, or conversion. Two possible jurisdictions are there. One, where the wrong was committed, and another, where the defendant resides, carries on business, or personally works for a gain. Now, the third essential is plaintiff's option. Section confers discretion upon the plaintiff to choose either of these court. So remember what are the essentials of section 19? Number, nature of suit. Number, there should be two possible jurisdiction. And the third, plaintiff option, where he will choose to file the suit. Purpose of section 19. The section is intended to avoid hardship to injured person by allowing him, oblique her, to file a suit at a convenient place, either where the injury occurred or where the defendant resides. It balances between convenience and fairness. The wrongdoer, the defendant, should answer for his wrong either in the place where the wrong occurred or where he lives or where he carries on his business. Example, illustration 1. A, who resides in Delhi, published defamatory statement about B in a newspaper that is circulated in Mumbai. The wrong, defamation occurred in Mumbai, but A resides in Delhi. Hence, under section 19, B can file the suit either in Delhi or in Mumbai. Illustration 2.
residing in Chennai wrongfully takes B's gold watch while visiting to Bangalore. The conversion of movable property occurred in Bangalore, but A resides in Chennai. Therefore, B can sue A either in Bangalore or in Chennai. I hope so. You are able to understand. Okay. Section 19. Now, this is basically the distinction between section 19 and 20. Basis of section 19, nature of suit, choice of jurisdiction, and applicability. On these three bases, we have separated section 19 and 20. Section 19, nature of suit for compensation for wrong to a person or movable property. Section 20, other than all of these suits, other suits not specifically provided. Choice of jurisdiction, either where the wrong occurred or where the defendant resides. Where the defendant resides, section 20, carries on the business or where the cause of action arises. So these are the differentiation between 19 and 20. Important case laws of section 19, State of Punjab versus A.K. Raha Engineers Limited, AIR 1964. The Calcutta High Court held that section 19 applies to wrongful acts causing damage to a person or immovables. It gives the plaintiff the choice to institute the suit whether either where the act occurred or where the defendant resides. Said Banarsi Das versus Kanwar Durga Prasad. Court observed that Section 19 is a special provision that overrides the general rule of Section 20 in cases of wrongs to a person or movables. Madan Lal versus Union of India. The court explained that the section covers all tortious acts causing damage to personal safety or movable property, not merely physical injury, but also wrong detention or conversion. Scope of wrong done to a person or movable property. What wrong can be done to a person or a movable property? हम इसको देखते हैं क्या क्या रॉन्ग कर सकते हैं हम किसी व्यक्ति को या मूवेबल प्रॉपर्टी. एक, असॉल्ट कर सकते हैं, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं, डिफेमेशन कर सकते हैं, निग्लिजेंस कॉजिंग इंजरी कर सकते हैं, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, रॉन्ग टू मूवेबल प्रॉपर्टी कर सकते हैं विच इंक्लूड ट्रेसपास टू गुड्स, कन्वर्जन, डिटेंशन ऑफ गुड्स. ये तीन रॉन्ग टू मूवेबल प्रॉपर्टीज हो गया. However, injury to immovable property like land is covered under section 16 and not section 19. Key points to remember. Section 19 is a special rule of jurisdiction in case of torts. It applies only when the wrong is to a person or movable property. Plaintiff has an option between the two courts. It ensures fairness and convenience in filing suits. It is independent of the general jurisdiction rule under section 20. तो हम देखते हैं कि सेक्शन 19 ने क्या बताया. सेक्शन 19 ने यह बताया है कि कौन से सूट सेक्शन 19 के अंदर दाखिल किए जा सकते हैं जहां पर कोई व्यक्ति को रॉन्ग किया गया हो या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को रॉन्ग किया गया हो. कौन कौन से रॉन्ग हमने ऑलरेडी आपको बताया. ओके, असॉल्ट है, डिफामेशन है, या प्रॉपर्टी को मूवेबल प्रॉपर्टी को विथहेल्ड करके रखा है. ये जितने सारे हम रॉन्ग से प्रॉपर्टी के बारे में बताए और जहां पर वो किया गया है उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में डाल सकता है प्लांटिफ, या जहां पर प्लांटिफ रहता है वहां पर डाल सकता है. तो मुझे लगता है हमने सेक्शन 19 अच्छे रीति से समझ लिया. आइए हम सेक्शन 20 की ओर चलते हैं. सेक्शन 20, other suits to be instituted where defendant resides or cause of action arises. मतलब जो 19 में मेंशन नहीं किए गए हैं सूट, वो सारे सूट सेक्शन 20 के अंदर हम दाखिल कर सकते हैं. सो सेक्शन 20 जो है ये जनरल रूल है, सेक्शन 19 है ये स्पेसिफिक रूल है. मुझे लगता है आप लोग को समझ में आया होगा कि
सेक्शन 19 और 20 में डिफरेंस क्या है, ये हमने पहले भी डिफरेंस बताया। आइए हम सेक्शन 20 को पढ़ते हैं। Subject to the limitations aforesaid, every suit shall be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction A. The defendant or each of the defendant, where there are more than one at the time of the commencement of the suit, actually and voluntarily resides or carries on business और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। तो सेक्शन 20 क्या बोल रहा, वो जो 19 में मेंशन किए सूट्स है, सिविल रॉन्ग, पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी को, इसके अलावा दूसरे कोई भी सूट हो तो हम कहां पर दाखिल कर सकते हैं। ओके, ज्यूरिडिक्शन कहां पर होगा उसको दाखिल करने का, जहां पर डिफेंडेंट रहता है या एक से ज्यादा डिफेंडेंट है वो रहते हैं। जब कमेंसमेंट ऑफ सूट होता है उस टाइम पर वो कहां पर रहते हैं। ओके, या वो कहां पर उनका बिजनेस है, या कहां पर वो एक्चुअल काम करते हैं जहां पर उनको गेन मिलता है। बी, any of the defendant where there are more than one at the time of commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries the business or personally work for gain, provided that in such case either the leave of the court is given or the defendant who does not reside or carry on business or personally work for the gain as aforesaid acquiesces in such institution। तीसरी बात, द कॉज ऑफ एक्शन होल और इन पार्ट अराइजेस। तो सेक्शन 20 का हम इलिस्ट्रेशन से हम इसको अच्छी रीति से समझ सकते हैं। उसके पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अ कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट एनी प्लेस वेयर इट हैज आल्सो एज अ सबऑर्डिनेट ऑफिस। चलो इलिस्ट्रेशन देखते हैं सेक्शन 20 समझने के लिए। अभी हमने तीन पार्ट देखा है, ए बी सी, सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, इसलिए हम इलिस्ट्रेशन को बराबर ध्यान से देखेंगे। ए इज अ ट्रेडमैन इन कैलकाटा, बी कैरीज ऑन बिजनेस इन दिल्ली, बी बाइज एजेंट इन कैलकाटा, बाइज गुड ऑफ ए and request A to deliver them to East Indian Railway Company. A delivers the goods accordingly in Calcutta. A may sue B for the price of the goods either in Calcutta, where the cause of action has risen, or in Delhi, where B carries on his business. तो सेक्शन 20 के हिसाब से हमने इलिस्ट्रेशन को देखा। दूसरा इलिस्ट्रेशन देखते हैं। ए रिजाइड्स एट शिमला, बी एट कैलकाटा, सी एट दिल्ली, ए बी सी बीइंग टुगेदर एट बनारस, बी सी मेक अ जॉइंट promissory note payable on demand and deliver it to A. A may sue B and C at Banaras where the cause of action arose. He may also sue them at Calcutta where B resides or at Delhi where C resides. But in each of these cases, if the non-resident defendant objects, the suit cannot proceed without the leave of court. तो देखना है हमको, इस बात को याद रखना है। ये जो इलिस्ट्रेशन है ये बी की जो हमने दिया था सेक्शन 20 का जो बी है उसके लिए ये एग्जाम्पल है, ताकि हमको समझ में आए। यहाँ पर डिफेंडेंट कितने थे, दो डिफेंडेंट है, दोनों अलग अलग रहते हैं। प्रॉमिसरी नोट एक जगह बनाई, इसलिए कोर्ट का लीव लेना पड़ेगा कि कहां पर प्रोसीड करना चाहिए। ओके, इस कंडीशन पर हम इशू कर सकते हैं, सू कर सकते हैं किसी को भी, एंड द प्लेस ऑफ सुइंग विल डिपेंड अपॉन दैट। मीनिंग एंड द स्कोप। आइए हम सेक्शन 20 का मीनिंग देखते हैं। सेक्शन 20 इज द रेजिडरी प्रोविजन दैट डील्स विद टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड फॉर ऑल सूट नॉट कवर्ड बाय अर्लियर सेक्शन। 15 से 19 ये जो अलग अलग सेक्शन है, इस सेक्शन के अंडर जो जो सूट्स दिए गए हैं, जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है सिविल कोड के, उनमें जो कवर नहीं होते उसके लिए सेक्शन 20 को बताया गया है। तो जब सिविल सूट दाखिल करना है, अगर वो 15, 16, 17, 18 और 19 में नहीं आता तो उसको जनरल रूल के हिसाब से 20 से हमको ट्रीट करके 20 के द्वारा जहां पर जुरिडिक्शन जिस कोर्ट का है वहां पर हमको उसको
दाखिल करना पड़ेगा और वहीं पर डिफेंडेंट को सू करना पड़ेगा. It determines where civil suit can be filed, that is, which court has territorial jurisdiction when the subject matter is not related to immovable property, which is covered under section 16, not to compensation of tort, which is covered under section 19. देखिए, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं है, और ये सेक्शन 16 में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड है उसकी, वो प्रॉपर्टी के बारे में नहीं, और सेक्शन 19 में जो लिखा है उसके अंदर भी जो नहीं है उसके लिए सेक्शन 20 है. आइए हम पर्पस ऑफ सेक्शन 20 देखते हैं. द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 20 is to ensure the defendant is not put to hardship by being sued in far off place where he neither resides nor works, and the plaintiff can sue where the cause of action arose, ensuring justice and convenience. It maintains the balance between convenience of plaintiff and fairness of the defendant. आइए हम एसेंशियल देखते हैं सेक्टर 20 का. पहला एसेंशियल क्या है कि सूट कहां पर इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, कौन से कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन पे, ये पहला एसेंशियल हो गया. क्लॉज ए क्या बोलता है, जहां पर डिफेंडेंट रिसाइड कर सकता है वहां पर, या जहां पर डिफेंडेंट कैरीज ऑन द बिजनेस वहां पर, या जहां पर डिफेंडेंट को काम के द्वारा गेन मिला है वहां पर. क्लॉज बी क्या बोलता है, जहां पे एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, तो जहां पर एक डिफेंडेंट रिजाइड करता है या वहां पर उसको जब गेन मिलता है कोई भी दूसरे एरिया में, उसके कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आप डाल सकते हैं. ओके, लेकिन कोर्ट ने लीव को ग्रांट करना पड़ेगा, और अदर डिफेंडेंट जो है उसका कंसेंट लेना या नो ऑब्जेक्शन लेना जरूरी है. क्लॉज सी हम देखते हैं. द कॉज ऑफ एक्शन, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन है, जहां पर पूरा कॉज ऑफ एक्शन है होली और पार्टली, और जिस लोकल लिमिट में आता है उस कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आप ये मैटर को फाइल कर सकते हैं. जहां पर कॉर्पोरेशन का सवाल आया, जहां पर उसका प्रिंसिपल ऑफिस है वहां पर, या उसका सबॉर्डिनेट ऑफिस है जहां पर वो सबॉर्डिनेट ऑफिस के द्वारा काम करता है वहां पर. इंपॉर्टेंट फ्रेजेस अभी हम एक्सप्लेन करते हैं. रिजाइड्स, रिजाइड्स का मतलब क्या है. ओके, सेक्शन 20 रिजाइड्स बोलता है, 19 भी रिजाइड्स बोलता है. रिजाइड का मतलब क्या है, रिफर्स टू एक्चुअल एंड वॉलेंट्री रेजिडेंस नॉट नियर परमानेंट स्टे. मतलब होटल में रुका था ऐसे जगह का उसको रेजिडेंस नहीं बोल सकते. फॉर इंडिविजुअल मीन्स देयर परमानेंट होम और ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ लिविंग. कॉर्पोरेशन या कंपनी के लिए प्रिंसिपल का रजिस्टर्ड ऑफिस. कैरीज ऑन बिजनेस, इसका मतलब क्या है, जहां पर वो ट्रेड कर रहा है या कोई मर्चेंट का काम करता है, उसकी कोई फर्म है, कंपनी है, या उसके एजेंट के द्वारा काम करता है. तीसरी बात, जो भी वो काम करता है वो पर्सनली वर्क करता है फॉर हिज गेन, मतलब उसके लाइवलीहुड के लिए पर्सनल लेबर और स्किल लगाकर अभी अगर वो काम करता है तो वो जगह, जैसे डॉक्टर हो, लॉयर हो. कॉज ऑफ एक्शन means the bundle of facts which gives rise to the site to sue the entire cause of action or part of it may arise within the jurisdiction. अभी हम इलिस्ट्रेशन को देखते हैं. इलिस्ट्रेशन ए resides in Delhi, B resides in Mumbai. A contracts with B in Mumbai to deliver goods in Delhi, and B fails to do so. The cause of action arises partly in Mumbai, where contract has been made, and partly in Delhi, where performance is due. Hence, A can file the suit either in Delhi or Mumbai. उसके बाद हम देखते हैं इलिस्ट्रेशन 2. A residing in Chennai defrauds B, who resides in Hyderabad, through online transaction. Since the defendant resides in Chennai,
and the part of the cause of action arose in Hyderabad, B can sue either in Chennai or Hyderabad. अभी इलिस्ट्रेशन 3 जहां पर मल्टीपल डिफेंडेंट्स है, A residing in Kolkata, B residing in Patna, jointly borrowed money from C residing in Kolkata. C can sue both in Kolkata with the leave of the court. एक्सप्लेनेशन फॉर कॉर्पोरेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा है, उसका एक केस लॉज है पटेल रोडवेज वर्सेस प्रसाद ट्रेडिंग एंड कंपनी. लीडिंग केस लॉज सेक्शन 20 के लीडिंग केस लॉज एबीसी लेमिनाट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एपी एजेंसीज. Supreme Court held that where part of cause of action arises in two places, suit can be filed in either. Also upheld the validity of jurisdiction causes in contract if not contrary to section 20. Hakam Singh versus Cayman India, Patel Roadways Limited versus Prasad Trading Company, ONGC versus Utpal Kumar Basu, Expar SA versus EU Pharma Laboratories Limited. ये सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज है. सेक्शन 19 और 20 का जो डिस्टिंक्शन है मैंने यहां पर लाकर आपको बताया. इस चार्ट को आप जरूर पढ़ लेना. उसके बाद की प्रिंसिपल जो डिराइव्ड हुए हैं सेक्शन 20 से. सेक्शन 20 बोलता है डिफेंडेंट का कन्वीनियंस का मेन कंसिडरेशन है, प्लांटिफ का नहीं. 19 ने बताया था प्लांटिफ का मेन कन्वीनियंस देखा गया है 19 सेक्शन में. Cause of action determines territorial jurisdiction. Corporation are governed by explanation clause. Consent or leave is needed when suing multiple defendants in different jurisdiction. Contractual choice of forum is valid if both courts otherwise have jurisdiction. समरी टेबल है. हमने देखा सेक्शन 20 में 3 क्लॉज थे ए बी सी, और तीनों के हमने समरी टेबल बनाया ए बी और सी के हिसाब से. ओके, आप इसको गो थ्रू कर लो. कंक्लूजन है सेक्शन 20 का क्या. सेक्शन 20 का कंक्लूजन ऐसा है, लेस डाउन द जनरल रूल ऑफ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन फॉर ऑल सूट नॉट अदरवाइज कवर्ड. मतलब जो 15 से 19 में टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जिस सूट के पास नहीं आता हो, वो 20 के लिए वो जनरल रूल है. इट गिव्स जुरिडिक्शन टू कोर्ट whether defendant resides or carries on the business, or where the cause of action has been arises, or this section ensures the convenience for the defendant. Section 21. Objections to jurisdiction. No objection as to place of suing shall be allowed by any appellate or revisional court unless such objection was taken in the court of the first instance. मतलब जब रिवीजन के लिए मैटर गया है या अपील में गया है, तब जुरिडिक्शन गलत है, ये ऑब्जेक्शन हम ले नहीं सकते. इस बात को हमको याद रखना है जो सेक्शन 21 बोलता है. अब सेक्शन 2 को देखते हैं. सब सेक्शन 2, सेक्शन 21 का सब क्लॉज 2. नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट विथ रेफरेंस टू पिक्यूनियरी लिमिट ऑफ इट्स जुरिडिक्शन शैल बी अलाउड बाय एन अपीलेट और रिविजनल कोर्ट. मतलब जजमेंट हो गया, अब उसके खिलाफ आपने अपील की या रिवीजन पर गए, और अपील और रिवीजन में जाने के बाद आपने ऑब्जेक्शन उठाया कि जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी है उसके पास पिक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन था ही नहीं, आप ये ऑब्जेक्शन को नहीं ले सकते. तो एक हो गया पहला प्लेस ऑफ सुइंग का ऑब्जेक्शन, वो आप नहीं उठा सकते. बी बोल रहा है कि पिक्यूनियरी लिमिट का जो ऑब्जेक्शन है ज्यूरिडिक्शन का, वो भी आप अपीलेट या रिवीजन के टाइम नहीं उठा सकते. तीसरा, नो ऑब्जेक्शन एज टू कंपिटेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट विथ रेफरेंस टू लोकल लिमिट. मतलब जो लोकल लिमिट है कोर्ट का, ओके, जो कोर्ट ने डिक्री एग्जीक्यूट करी है उसके ज्यूरिडिक्शन के बारे में भी आप अपीलेट और रिवीजन के टाइम ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते. अभी हम देखते हैं
सेक्शन 21 आया क्यों है, उसका पर्पस क्या है। सेक्शन 21 सीपीसी डील्स विथ प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज relating to jurisdiction, specifically territorial or pecuniary jurisdiction, and limits when such objections can be raised. तो अगर कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है jurisdiction के बारे में, चाहे वो टेरिटोरियल का हो, पेक्यूनरी का हो, आपको कब और कहां पर ऑब्जेक्शन उठाना है, ये सेक्शन 21 बताता है। Okay? It prevents litigants from taking technical advantage for minor jurisdictional errors after full trial and judgment is being given. Okay? In short, a party cannot object later that the case was filed in the wrong place. ये इतना सिंपल है। पूरा जजमेंट हो गया, ट्रायल हो गया, तब तक वो चुप बैठा था। जब वो अपील उसने किया, तब उसने अपील में क्या किया है, ऑब्जेक्शन उठाया ज्यूरिडिक्शन का। तो हम देखते हैं इसका स्कोप और एंड टाइप्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन कवर्ड अंडर सेक्शन 21। हमने सब सेक्शन 1, 2, 3 दिए, टाइप ऑफ ज्यूरिडिक्शन दिया है। 1 बोलता है टेरिटोरियल, 2 बोलता है पिक्यूनरी, तीसरा बोलता है लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कोर्ट, जहां पर डिक्री के एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग चलती है। ओके, यहां पर ऊपर वाले में ट्रायल का एंड अपील का स्टेज है, यहां पर भी ट्रायल और अपील का स्टेज है। ओके, कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्शन मस्ट बी टेकन अर्लियर, दोनों तीनों जगह पर। अब 3 की कंडीशंस टू रेज ऑब्जेक्शन, यहां पर देखते हैं हम 3 इंपॉर्टेंट शर्तें हैं जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया जाता है। ओके, एक, द ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द ट्रायल कोर्ट एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। नंबर 1, अगर लिया है, ओके, तो आप उसको अपील में भी रेस कर सकते। फॉर इंस्टेंट, इन द रिटर्न स्टेटमेंट और बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इशू, इट वॉज टेकन बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू। कब कब ऑब्जेक्शन आपने रेस किया, या तो बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इशू, रिटर्न स्टेटमेंट के पहले, या सेटल इशू के सेटलमेंट होने के पहले। देयर हैज बीन कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, आपने लिखा लेकिन आपकी ऑब्जेक्शन पर ध्यान नहीं दिया गया, ये इरेगुलरिटी अगर आपके होगी तो आप ये तीनों कंडीशन, इफ एनी ऑफ दिस 3 कंडीशंस आर मिसिंग, द ऑब्जेक्शन कैनॉट बी एंटरटेन्ड एट द लेटर इन अपील और रिवीजन। सॉरी, ध्यान में देखिए आप, ये 3 कंडीशन है। अगर ये 3 कंडीशन पे आपने ऑब्जेक्शन उठाए और आपके ऑब्जेक्शन को एंटरटेन नहीं किया गया, तब आप ऑब्जेक्शन को उठा सकते हैं। कब, अपील के टाइम और रिवीजन के टाइम। क्योंकि सेक्शन 20 क्या बोला था, आप नहीं उठा सकते। लेकिन आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है और अगर उसको ओवर रूल किया गया तो सेक्शन 20 एप्लीकेबल नहीं होता। एक्सप्लेनेशन ऑफ की टर्म, प्लेस ऑफ सुइंग, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, पिक्यूनरी लिमिट मतलब मॉनिटरी ज्यूरिडिक्शन, फेलियर ऑफ जस्टिस मींस एक्चुअल प्रेजुडिस और इनजस्टिस हुआ है ड्यू टू लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन। आपने ऑब्जेक्शन उठाया था, लिया गया नहीं, आपका ऑब्जेक्शन कंसीडर नहीं किया गया। पर्पस ऑफ सेक्शन 21, सेक्शन 21 क्यों डाला कि भाई जहां पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, अब आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं पूरा सेटलमेंट होने के बाद, डिक्री होने के बाद, तब नहीं उठा सकते। क्यों, अब्यूज टू प्रोसेस हो जाएगा। और टू प्रमोट फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन, अवॉइड टेक्निकल डिलेज, टू प्रोटेक्ट बोनाफाइड डिक्रीज पास बाय द कोर्ट्स हैविंग जनरल कॉम्पिटेंस। इलिस्ट्रेशन देखते हैं, इलिस्ट्रेशन 1, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। हमने 3 इलिस्ट्रेशन दिया है, एक टेरिटोरियल का, बी पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन का, और 3 इलिस्ट्रेशन का। आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसे पढ़ लूं
तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसे पढ़ लो। टाइप ऑफ जुरिडिक्शन, यस, मैंने बताया है। बिटवीन द लैक ऑफ जुरिडिक्शन टाइप, टेरिटोरियल कवर्ड बाय सेक्शन 21, इफेक्ट ऑफ लैक, डिक्रीज इरेगुलर नॉट वाइड, पिक्यूनरी covered under section 21, yes, decrease irregular not wide, subject matter not covered by section 21, decrease void ab initio, section 21 does not apply to subject matter jurisdiction. आइए हम लीडिंग केस लॉस को देखते हैं। लीडिंग केस लॉस, एक्सक्यूज मी, लीडिंग केस लॉस, करण सिंह वर्सेस चमन पासवान, एआईआर 1954, लैंडमार्क केस है सेक्शन 21 का। हीरालाल पटनी वर्सेस कालीनाथ, 1962 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हेल्ड दैट ऑब्जेक्शन टू टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मस्ट बी रेज्ड एट द अर्लीस्ट, नॉट आफ्टर पार्टिसिपेशन इन प्रोसीडिंग। पतुमा वर्सेस कुटी, एआर 1981 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ऑल थ्री कंडीशन ऑफ सेक्शन 21 मस्ट बी सेटिस्फाइड। फोर, ऑफिशियल ट्रस्टीज वेस्ट बंगाल वर्सेस सचिंद्रनाथ चटर्जी, objection to pecuniary jurisdiction is not fatal unless it affects the merits and results in failure of justice. Bharat Petroleum Company versus PJ Pappu, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ऑब्जेक्शन मस्ट बी रेज स्पेसिफिकली एंड टाइमली, अदरवाइज इट इज डीम्ड टू बी वेव्ड ऑफ। सेक्शन 21 के की प्रिंसिपल्स हम देखते हैं। क्या, कौन कौन से की प्रिंसिपल को सेक्शन 21 एक्सप्लेन करता है? जुरिडिक्शन डिफेक्ट्स, डिक्री नॉट वॉइड, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन को डिसाइड नहीं करता वो, कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, टेक्निकल ग्राउंड पर इरेगुलरिटी, टाइमिंग इज क्रिटिकल, ऑब्जेक्शन मस्ट बी रेज एट द अर्लीस्ट। अब ये 21 है और 21 का हम डिफरेंस देखते हैं। ओके, 21 काय के लिए है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्शन टू जुरिडिक्शन। 21 ए काय के लिए? बार्स ऑफ सूट टू सेट असाइड डिक्रीज ऑन ऑब्जेक्शन टू जुरिडिक्शन। जब हम सेक्शन 21 ए पढ़ेंगे तो डिटेल में से पढ़ लेंगे। तो आइए हम इसका समरी टेबल ये हमने बनाया है, इस समरी टेबल को देख लो। ये समरी टेबल और जो कंक्लूजन है सेक्शन 21 क्यों इंक्लूड किया गया है। 21 ए, इस सेक्शन को हम देखते हैं अभी। दिस सेक्शन इज क्लोजली लिंक्ड विद सेक्शन 21, was inserted later to prevent multiplicity of litigation based solely on jurisdictional technicalities. 21 ए क्या बोलता है? Bar on suit to set aside decree on objection as to place of suing. No suit shall lie challenging the validity of the decree passed in a former suit between the same party or between the parties between under whom they or any of them claim litigating under the same title on any ground based on objection as the place of suing. हम इसे वापिस एक बार पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए। 21 ए, बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज ए प्लेस ऑफ स्विंग, मतलब प्लेस ऑफ स्विंग पर ऑब्जेक्शन लिया गया था और इसके ऊपर ऑब्जेक्शन पे बार कभी लाया जा सकता है। नो सूट शैल लाई challenging the validity of decree passed in a former suit between same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title or any ground based on an objection as to the place of suing. अभी हम इसको डिटेल में इसका मीनिंग देखते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ये 21 ए लाया क्यों गया, तब तो आपको 21 ए बराबर समझ में आएगा। इसका बैकग्राउंड क्या है? सेक्शन 21 ए वाज इंसर्टेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट, ओके, 1976 to supplement to section 21. Before this insertion, litigants sometimes file fresh suits to set aside decrees on the ground
that the earlier suit was filed in the wrong court. This led to unnecessary multiplicity of proceeding and delay in justice. Hence, Section 21A was enacted to bar such fresh suits, ensuring finality of decrees, even if there was technical defects in jurisdiction. अब 21A क्या बोलता है कि तुम जो बार हुआ है, जो आपने ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था, आपने ऑब्जेक्शन उठाया नहीं, अब आपने क्या किया, नया फ्रेश सूट डाल दिया। काय के लिए? डिक्री होने के बाद फ्रेश सूट काय के लिए कि भाई वो जो कोर्ट था उसको सेक्शन 20 के अंडर पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन नहीं था, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं था, या उसको एग्जीक्यूटिंग जुरिडिक्शन नहीं था उस कोर्ट को। तो आपने क्या किया, उस टाइम ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो 20 ने क्या किया, 20 ने बोला अपील के टाइम और रिवीजन के टाइम आप वो ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। तो लोग क्या करते थे, लोग क्या करते थे, एक नया फ्रेश सूट फाइल करते थे, और वो सूट का प्रे मैटर क्या होता था, ऑब्जेक्शन। काय के लिए? क्योंकि जो सूट ने, जो कोर्ट ने सूट की डिक्री दी है उसके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं था, इसलिए वो नया सूट दाखिल करते थे। इसीलिए सेक्शन 21A को लाया गया, ताकि बार बार ये तकलीफ ना हो। ऑब्जेक्ट एंड द पर्पस, मुझे लगता है 21A का पर्पस सबको समझ में आया। द मेन पर्पस ऑफ सेक्शन 21A इज टू प्रिवेंट मल्टीपलिसिटी ऑफ लिटिगेशन, ensure finality of decrees and stop litigants from reopening cases। ये इसके ऑब्जेक्ट और पर्पस है। सेक्शन 21A के इंग्रेडिएंट्स और कंडीशन को हम देखते हैं। For section 21A to apply, following condition must be satisfied. Number one, there must have been a former suit. एक, a decree must have been passed in that suit. दो, parties in the former and subsequent suit should be same. तीन, claiming under the same title. चार, new suit challenges the validity of the earlier decree on the ground of the place of wrong suing, place of suing. The section then bars such new suit completely। मतलब एक नया सूट दाखिल हो गया, सूट का दोनों पार्टी सेम है, क्योंकि ये दोनों पार्टी के सूट पे ऑलरेडी डिक्री पास हो चुकी है, क्लेम भी सेम है नए सूट में। और नया सूट ये बोलता है कि भाई जो कोर्ट ने डिक्री पास की है, ओके, उसके पास टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ही नहीं था। इस प्रकार का अगर कोई नया सूट हो तो सेक्शन 21 उसको बाहर कर देगा, मतलब कोर्ट में जाने के साथ ही वो रिजेक्ट हो जाएगा। स्कोप एंड नेचर, सेक्शन 21A applies only to objection regarding the place of suing, territorial jurisdiction, not pecuniary और सब्जेक्ट मैटर। 21A का याद रखो आप, पिक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर के ऊपर नहीं है, खाली पिक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर पे नहीं है, सिर्फ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पर है। लेकिन 21 क्या बोलता है, ऑब्जेक्शन टू अपील, याद रखना, ऑब्जेक्शन टू अपील और रिवीजन, रिवीजन और अपील में ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, चाहे वो पिक्यूनरी हो, टेरिटोरियल हो या सब्जेक्ट मैटर हो, राइट। एग्जाम्पल, हमने 3 इलिस्ट्रेशन दिए हैं, आप इस एग्जाम्पल को पढ़ लो, आपको ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएंगे। ये सेक्शन 21A को समझने के लिए हमने 3 इलिस्ट्रेशन दिए हैं, ओके। अब क्योंकि हमारा वीडियो ज्यादा लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं पढ़ रहा हूं। लीगल इफेक्ट ऑफ सेक्शन 21A, once a decree is passed, it cannot be challenged by a new suit merely on the ground that the earlier court lacked the territorial jurisdiction। ये इसका लीगल इफेक्ट है, इस बात को हमको ध्यान में रखना है।
21 और 21A का जो रिलेशनशिप है, इसका हमने टेबल दिया। इस टेबल को आप ध्यान से पढ़ लो। ओके। स्टेज ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शन, कहां कहां पर ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन कौन कौन से है 21 में और 21A में, कंडीशन कब ऑब्जेक्शन कौन से कंडीशन पे रेज किया गया, पर्पस क्या है और इफेक्ट क्या है। ये दोनों अगर आपने बराबर साइमल्टेनियसली पढ़ लिया तो मुझे लगता है आपको 21 और 21A समझने में दिक्कत नहीं होगी। इंपॉर्टेंट केस लॉस, करण सिंह वर्सेस चमन पासवान, भारत पेट्रोलियम जो हमने पहले ही पढ़ा है, उत्तमन कुट्टन कुट्टी, हर्षद चिमनलाल मोदी वर्सेस डीएलएफ, डिस्टिंक्शन बिटवीन ज्यूरिडिक्शनल डिफेक्ट्स, टाइप ऑफ ज्यूरिडिक्शन टेरिटोरियल 21A अप्लाइज, पिक्यूनरी में अप्लाई नहीं करता, सब्जेक्ट मैटर में नहीं अप्लाई करता, लेकिन इफेक्ट ऑफ डिक्री क्या है, वैलिड अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस इज शोन, कैन बी ऑब्जेक्टेड टू अंडर सेक्शन 21 सब क्लॉज 2, डिक्री इज वॉइड अब इनिशियो। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन ज्यूरिडिक्शनल डिफेक्ट, की प्रिंसिपल्स of section 21A. Finality of decree. Once a decree is passed, it cannot be reopened. No fresh suit on jurisdictional objections. Encourage timely objections. Not applicable to subject matter jurisdiction. मतलब आप कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, टाइम पर आपको ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा, राइट स्टेज पर ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज, promote judicial economy and certainty, protects bona fide decrees from being challenged, repeatedly encourages diligence on the part of defendants। ये पूरा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 21A का, इसे आप पढ़ लो। ये टेबल आपको पूरा सेक्शन 21A समझा देगा। आइए हम कंक्लूजन देखते हैं। सेक्शन 21A सीपीसी रेइनफोर्स प्रिंसिपल ऑफ finality in civil litigation by bearing fish suit, challenging decrees on the ground of territorial jurisdiction. It reflects the legal maxim, interest republicae, ad sit finance litigating. It is in the interest of the state that there should be an end to litigation. Thus, once a decree is passed, it cannot be set aside merely on technical objections to the place of suing. Only subject matter jurisdiction remains a fundamental and non-waivable defects। इसी के साथ हमने आज के वीडियो में सेक्शन 19, 20 और 21 को एकदम क्लियर करके एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना न भूलना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।